சுவிசேஷம் 16வது அதிகாரம் 15வது வசனம் இப்படி சொல்கிறது. मरकुस 16 का 15वां वचन इस प्रकार कहती है, நீங்கள் உலகமெங்கும் புறப்பட்டு போய் சர்வ சிருஷ்டிக்கும் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கியுங்கள். तुम सारे जगत में जाकर सारे लोगों को सुसमाचार प्रचार करो. நாம் எல்லாருக்கும் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்க வேண்டும். यारो सारे लोगों को सुसमाचार सुनाना हमारा जिम्मेवारी है. ஆண்டவர் அப்போஸ்தலனாகிய பேதுரு அவர்களை பார்த்து சொல்லுகிறார், என் ஆட்டுக்குட்டிகளை மேய்ப்பாயாக. यारो पतरस को देखकर परमेश्वर ने ये कहा, मेरे मेमनाओं को चरावो. அப்போ சிறு பிள்ளைகளிலிருந்து பெரியவர்கள் வரைக்கும் நாம் எல்லாருக்கும் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்க வேண்டிய ஒரு பொறுப்பிலே இருக்கிறோம். यारो एक सुसमाचार को सुनाने का मतलब क्या है? बच्चों से लेकर बड़ों तक सुसमाचार सुनाना एक पास्टर का एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी है. சுவிசேஷம் என்று சொன்னால் இயேசுவே இரட்சகர் என்பதை நாம் எல்லாருக்கும் அறிவிக்க வேண்டும். यारो सुसमाचार का मतलब यीशु ही उद्धार करता है. ये संदेश को छोटा से लेकर बड़ों तक सुनाना है. நம்முடைய சபையிலே எவ்வளவு சிறுவர்களுக்கு நாம் ஆண்டவரை அறிவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். यारो हमारे चर्च में कितना बच्चों के लिए आप सुसमाचार सुनाए हैं. நீங்கள் உங்கள் சபைகளிலே விபிஎஸ் நடத்துகிறீர்களா? क्या आपके चर्च में वीबीएस होता है? हेलो, कितना चर्च में वीबीएस होता है? किस किस के चर्च में वीबीएस होता है? 1 2 3 4 और बाकी चर्चेस में लड्डू खिलाते हैं. हाँ, சர்ச்சில் ஞாயிறு பள்ளி நடத்துகிறீர்களா? अच्छा, संडे स्कूल कितना जहाँ पे होता है? संडे स्कूल 1 2 3 ओ बाकी जगह संडे स्कूल भी नहीं होता है. बड़ी अफसोस. ஊழியத்திலே மிக ஆசீர்வாதமான ஒன்று ஆட்டுக்குட்டிகளை மேய்ப்பது. प्यारों, सेवकाई में सबसे अच्छा चीज क्या है? मेमनाओं को चराना. நீதிமொழிகள் 22:6 சொல்கிறது, பிள்ளையானவன் நடக்க வேண்டிய வழியிலே அவனை நடத்து, அவன் முதிர் வயதிலும் அதை விடாதிருப்பான். बाइबल का वचन कहती है, बच्चे सॉरी नीति वचन 22 का 6 कहती है, बच्चे जिस मार्ग पर चलना चाहिए उसी मार्ग को सिखा दे, वे बुढ़ापे में भी उसको नहीं छोड़ेगा. என ஊழியத்திலே சிறுவர் ஊழியம் செய்வதற்கு நான் ஊன்ற தள்ளப்பட்டேன். यारों, बच्चों की सेवकाई करने के लिए परमेश्वर ने मेरे अंदर बहुत बड़ा प्रेरणा को दिया. ஆனால் ஏற்றுக்கொள்வதற்கு மனமில்லை. लेकिन बच्चों के सेवकाई को करने के लिए मेरा अंदर मन नहीं है. மிகுந்த மன உளைச்சலின் மத்தியிலே 1986வது ஆண்டு ஜூன் மாதம் 10ஆம் தேதி என்னுடைய சண்டே ஸ்கூலை ஆரம்பித்தேன். 1986 में जून महीना 10 तारीख को मैंने मजबूरी में बच्चों की सेवकाई संडे स्कूल को मैंने शुरू किया. परमेश्वर का दबाव में मैंने शुरू किया. 8 சிறு பிள்ளைகள் இருந்தார்கள், குட்டி குட்டிக்கான். 8 बच्चे थे. 8 बच्चों का रख के मैंने संडे स्कूल शुरू किया. சண்டே ஸ்கூல் முடிச்சு வீட்ல போய் அழுதேன், ஆண்டவரே இதுக்கு எதுக்கு என்ன போட்டு பாரு, என்ன செய்யணும், நான் தேவையா என்று சொல்லி. 8 बच्चों को संडे स्कूल चला के मैंने घर में जाकर फूट फूट कर रोया, हे प्रभु, इन बच्चों को चलाने के लिए आपने मुझे सेवकाई में बुलाए. ஆண்டவர் கேட்டா, நீ என்ன செய்தாய் என்று சொல்லி கேட்டா, நான் ஒரு சேர்ல உட்கார்ந்து இருந்து பாட்டு சொல்லி கொடுத்தேன், கதை சொன்னேன். तो परमेश्वर हमसे पूछ रहे हैं, तुमने क्या किया बाबू? तो मैंने बोला, मैं तो कुर्सी में बैठकर ये गाना सिखाया, वचन सिखाकर, कहानी बोलकर मैंने आया. ஆண்டவர் என்னன்னா, அடுத்த வாரத்திலிருந்து நீ எழுந்து நின்று நடக்கணும், உச்சந்தலையிலிருந்து உள்ளங்கால் வரைக்கும் அசையணும், நீ சிரிக்கணும் அப்படி சொன்னார். अब फिर परमेश्वर ने कहा, अगला सप्ताह क्या करना है? तुम कुर्सी पर नहीं बैठना, तुम खड़ा रहना है और ऊपर से लेकर नीचे तक आपका शरीर पूरा हिलना चाहिए. तुम मुंह बनाकर नहीं बैठना है, हंसते हुए तुम सब कुछ करना है करके परमेश्वर हमसे बोलने लगे. அடுத்த வாரத்திலே 12 பிள்ளைகளும் 1.5 ஆண்டுகளிலே அந்த சண்டே ஸ்கூல்ல 110 பிள்ளைகளும் கலந்து கொண்டார்கள். दूसरा दिन जो है उस संडे स्कूल में 12 बच्चे आए. उसके बाद अगला साल में देखिएगा उस संडे स्कूल में 120 बच्चे आए थे. அது என்னை உற்சாகப்படுத்தினது. ஞாயிற்றுக்கிழமை 4 சண்டே ஸ்கூல் நடத்துவேன். यार संडे के दिन मैंने 4 संडे स्कूल चलाता था. कितना संडे स्कूल? பின்பு அதை ஒரு வருடம் 1.5 வருடம் நடத்திவிட்டு இன்னொரு கையில பொறுப்பை கொடுத்துவிட்டு, எந்த பகுதியிலே சண்டே ஸ்கூல் இல்லையோ அங்கே போய், ஒரு வீட்டுல வேப்பமரம் இருக்கும்,
நிழல் வெளியே விடும். நான் நிழல்ல இருந்து நடத்துவேன், வீட்டுக்குள்ள இல்ல, ரோட்ல அந்த நிழல்ல இருந்து சண்டே ஸ்கூல் நடத்துவேன். उसके बाद मैंने क्या करने लगा, जैसे जैसे संडे स्कूल बढ़ने लगा, किसी का हवाला देकर मैंने जहां जहां संडे स्कूल नहीं चलता था उस जगह पर जाकर संडे स्कूल शुरू करने लगा. जहां पर भी छाया देखते थे वहां पर खड़े होकर हिम्मत से गाना गाते थे, बच्चे आ जाते थे, उन लोगों के लिए वचन सुनाते थे. ஒரு நாள் இன்னைக்கு எனக்கு வேலைக்கு 12 ரூபாய் சம்பளம், ஞாயிற்றுக்கிழமை நான் 18 ரூபாய் செலவு பண்ணுவேன். और 18 ரூபாய் செலவு, 12 ரூபாய் ஒரு நாளைக்கு 12 ரூபாய் சம்பளம், ஆனா ஞாயிற்றுக்கிழமை 18 ரூபாய் செலவு பண்ணுவேன். एक दिन मुझे तनख्वाह मिलता था 12 रुपया उन दिनों में, लेकिन मैं संडे स्कूल के लिए एक दिन में 18 रुपया खर्च करता था. कितना रुपया भैया? 18 रुपया खर्च करते थे. என்னுடைய சண்டே ஸ்கூல் பிள்ளைகள் இன்றைக்கு சண்டே ஸ்கூல் டீச்சர்ஸா இருக்கிறாங்க. यार उस दिन में मेरा संडे स्कूल के बच्चे आज संडे स्कूल का टीचर बन गए. சண்டே ஸ்கூல்ல யார் கையில எல்லாம் கொடுத்தேனோ அவர்கள் எல்லாம் போதகர்களா இருக்கிறாங்க. संडे स्कूल के टीचर ग्रुप में जिसको मैंने बहाल किया है वो सब कोई आज पास्टर और पास्टरेट बन गए. நான் 95வது வருடத்திலே ஒரு ஊழிய ஸ்தாபனத்திலே இணைந்து ஊழியம் செய்ய சென்றேன். 1995 में एक मिशनरी संस्था में जाकर मैंने शामिल हुआ. அந்த ஊழிய ஸ்தாபனத்திலே சிறுவர் ஊழியம் கிடையாது. उस संस्था में बच्चों की सेवकाई है ही नहीं था. 96வது ஆண்டிலே அங்கே நான் VBS நடத்துவதற்கு தலைவரோடு கூட போராடி ஆரம்பித்தேன். मैंने वहां उस समय में चर्च के संस्थापक के साथ मैंने लड़कर, नहीं देखिए हमारे क्षेत्र में बच्चों की सेवकाई नहीं हो रही है, हमारे चर्चेस में सेवकाई होना करके मैंने लड़के वहां VBS के काम को शुरू किए. அந்த வருடத்திலே நானும் என் மனைவியும் பல கிராமங்களிலே போய் தங்கி அந்த வருடத்திலே 8 கிராமங்களிலே VBS நடத்தினோம். यार उन दिनों में 1996 में मैंने 8 गांव में जाकर VBS को चलाया था. अलग-अलग बस्ती में जाकर बैठकर रहकर VBS चलाया. அந்த ஸ்தாபனத்தை விட்டு இப்போ நான் வெளியே வந்து விட்டேன். இப்பொழுது ஒவ்வொரு வருடமும் 575 கிராமத்துல VBS அவர்கள் நடத்துகிறார்கள். यारो आज उस संस्था से मैंने बाहर आ गया हूं, लेकिन उस संस्था वाले ने आज भी 575 गांव में VBS चलाते हैं. हालेलुया. कितना गांव में? நான் வெளியே வந்த பொழுது இந்த ஊழியம் செய்ய வேண்டும், இதே ஊழியத்தை தொடர வேண்டும் என்ற பொழுது எனக்கு மிகுந்த பொருளாதார நெருக்கங்கள் இருந்தது. यार जब मैंने सोचा था बाहर तो आ गए लेकिन बच्चों की सेवकाई तो जारी रखना करके जब मैंने सोचा तो आर्थिक दबाव मेरे ऊपर आने लगा. அப்பொழுது अनेகர் கேட்டார்கள், நீ ஸ்தாபனத்தில் இருந்தாய், ஸ்தாபனம் செலவிட்டது, இப்போது உனக்கு யார் தருவார்கள் என்று சொல்லி கேட்டார்கள். तो कई लोग कहने लगा, अरे पहले संस्था में थे, संस्था खर्च करता था, अभी तुमको कौन पैसा देगा, ऐसे करके लोग कहने लगे. ஆண்டவர் கேட்டார், ஸ்தாபனம் பெரியவரா நான் பெரியவரா என்று சொல்லி கேள்வி கேட்டார். परमेश्वर हमसे सवाल कर रहे, संस्था बड़ा है या मैं बड़ा हूं? पूछो, बोलो. तो कौन बड़ा है भैया? संस्था बड़ा, परमेश्वर बड़ा? सच सोच के बोलिए. आपके लिए संस्था बड़ा है, परमेश्वर बड़ा है? बड़ी झूठ बोलते हैं आप लोग. आपके लिए संस्था ही बड़ा है, परमेश्वर छोटा है. यही समस्या. அப்படி நான் இருக்கிற பொழுது ஒரு நாள் ஆண்டவர் மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷத்திலே கடைசி 28வது அதிகாரத்திலிருந்து சொன்னார், இயேசு கிறிஸ்து உயிர்த்தெழவில்லை என்று சொல்லி சொன்ன சேவகர்களுக்கு வேண்டிய பணத்தை கொடுத்தார்கள். நீ நான் உயிர்த்தெழுந்தேன் என்று சொல்ல போகிறாய், உனக்கு வேண்டிய பணத்தை நான் தருவேன் சொன்னார். और यीशु मसीह ने हमसे कहने लगे, सुनो यार, मत्ती 28 में ये यीशु मसीह जिंदा हुआ नहीं है करके वहां पर जितना चौकीदार है उन लोगों को पैसा देते थे. यीशु जिंदा है करके बोलने के लिए मैं तुम्हें पैसा दूंगा करके वो कहने लगे. அன்றையிலிருந்து ஆண்டவர் என்னத்தை சொன்னார், நீ கணக்கு எழுதுவாயான்னு கேட்டார். तो उस समय से परमेश्वर हमसे पूछ रहा है, क्या तुम लिखा पढ़ी करेगा, हिसाब किताब करेगा? இன்றைக்கு வரைக்கும் ஒரு டீ குடித்தாலும் கணக்கு எழுதுவேன், ஒருவர் 12 ரூபாய் காணிக்கை கொடுத்தாலும் கணக்கு எழுதுவேன். यार आज एक चाय भी पी लूंगा ना, मैं उसको लिखता हूँ. एक आदमी 10 रुपया दान भी देगा ना, उसको भी मैं लिखता हूँ. ஒவ்வொரு மாதமும் கணக்கு முடிக்கும் போது 5 ரூபாயாவது மீதி இருக்குமே தவிர 5 ரூபாய் கடன் இருக்காது. यारो हर महीने हिसाब किताब करने के बाद मेरा हिसाब किताब में कभी घट ही नहीं रहा, कम से कम 5 रुपया तो बचत रहता है. हालेलुया, हालेलुया. ஆண்டவர் சொன்ன வார்த்தை, பிள்ளையானவன் நடக்க வேண்டிய வழியிலே அவனை நடத்து, அவன் முதிர் வயதிலும் அதை விடாதிருப்பான். बाइबल का वचन कहती है, बच्चे जिस मार्ग में चलना चाहिए उसी मार्ग को सिखा दो, वो बुढ़ापे में भी नहीं छोड़ेगा.
நான் குடியிருக்கிற பகுதியில என்னை சுற்றிலும் இருக்கிற எல்லா விதமான சபைகளிலுமே நான் சிறுவர் ஊழியத்தை ஆரம்பித்து தொடர்ந்து அவர்களை நடத்தும்படியாய் அவர்கள் கரங்களிலே ஒப்பு கொடுத்திருக்கிறேன். यार मेरा आसपास में जितना चर्चेस है सब चर्चेस में बच्चों के सेवकाई को शुरू करके उसको चलाने की जिम्मेवारी को उस पास्टर के हाथों में दी है. அதனால் என்னுடைய பிரதானமான எதிர்பார்ப்பு ஆண்டவர் வரும்போது என்னை சுற்றிலும் இருக்கிற சிறுவர்கள் இயேசு எனக்கு தெரியாதுன்னு சொல்லக்கூடாது. So मेरा अंदर एक बहुत बड़ा तमन्ना है, चाहत है, मेरा अगल बगल में आसपास में जितना बच्चे हैं वो कभी नहीं कहना है मुझे यीशु के बारे में जानकारी नहीं है. நாம் அப்படி அறிவிக்கிற பொழுது ஆண்டவர் செய்ய வேண்டிய பெரிய காரியங்களை செய்கிறார். यारो जब आप सेवा करेंगे, जब आप काम करेंगे, परमेश्वर जो कुछ करना है उसको वो भी पूरा करता है. हालेलुया. அதே போல கிராமங்களிலே சென்று வாலிபர்களை கூட்டி வனாந்தர பகுதிக்கு கூட்டி சென்று அவர்களை கூட்டி வைத்து ஜெபிக்கிற பழக்கம் உண்டு. यारो मेरा अंदर एक और अच्छा स्वभाव है, गांव से जवानों को ले जाके कहीं जंगल में ले जाके जवानों के साथ बैठ कर प्रार्थना करते थे. கிறிஸ்தவ பையன்கள் என்பது பிரதானம் அல்ல, கிராமங்களில் இருக்கிற கிறிஸ்தவர் அல்லாத வாலிபர்களை அழைத்து சென்று यारो मसीह में रहने वाले जवानों को नहीं, मसीह में न रहने वाले जवानों को चलो ना यार ऐसे जंगल में जाएंगे करके जंगल में ले जाके उनके साथ बैठ कर प्रार्थना करते थे. அந்த வாலிபர்கள் எல்லாம் இன்றைக்கு அவர்கள் கிராமங்களுக்கு அவர்கள் ஆசீர்வாதமாக இருக்கிறார்கள். यारो वो सारे नौजवान लोग जो अन्य जाति में है वो सब कोई आज उस बस्ती के लिए आशीष का कारण बन गए. நாம் அப்படியாய் சிறுவர்கள் வாலிபர்கள் என்பது மாத்திரமல்ல, ஒவ்வொரு தரப்பில் உள்ளவர்களுக்கும் நாம் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்க வேண்டியது நம்முடைய கடமை. तो इसलिए न केवल बच्चों को, न केवल जवानों को, हर वर्ग के लोगों को हमें क्या सुसमाचार प्रचार करना है. हालेलुया, हालेलुया, हाथ उठाकर बोले हालेलुया. ஆண்டவருடைய பிரதான நோக்கம் அவர் சொல்லுகிற வார்த்தை, இதோ நான் மாம்சமான யாவருக்கும் தேவனாகிய கர்த்தர். यार हम बाइबल का वचन कहते हैं वो सारे मानव जाति के लिए वो परमेश्वर है. அவருக்கு முன்பாக படித்தவன் படிக்காதவன் பணக்காரன் சமுதாய ரீதியாய் ஒதுக்கப்பட்டவன் என்பது அல்ல. यार उनके सामने ये नहीं है वो पढ़े लिखे आदमी है, वो पैसा वाला ना पैसा वाला है, वो छोटा है बड़ा है, वो लंबा है नीचा है करके नहीं. ஆண்டவர் எல்லா ஜனத்திற்கும் அறிவிக்கும்படியாய் நம்மை தெரிந்தெடுத்திருக்கிறார். यारो सारे मानव जाति को सुसमाचार सुनाने के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना है. அப்படி அறிவிக்கிற நாம் நம்முடைய சபை விசுவாசிகளை அறிவிக்கிறவர்களாய் மாற்ற வேண்டும். यारो जब आप सुनाने वाले रहेंगे हमारा चर्च भी सुनाने वाला चर्च बन जाएगा. हालेलुया, हालेलुया. முதலாவது சபை வளர்ச்சி பாயிண்ட்ல நான்காவது சொன்னேன், சபையில் சுவிசேஷ பிரபல்யம் நடக்க வேண்டும் என்று சொல்லி. यार इसलिए मैंने चर्च की उन्नति के लिए कहा था हमारा चर्च से हमेशा सुसमाचार का काम होते रहना है. அதாவது ஒரு மந்தை இருக்கிறது வைத்துக் கொள்வோம், அதனுடைய மேய்ப்பன் குட்டி போடுவானா ஆடு குட்டி போடுவான்? मान लीजिए भेड़शाला रखेंगे, कौन बचा देगा? चरवाहा बचा देता है या मेमना या बकरी बचा देता है? चरवाहा नहीं देता. மேய்ப்பன் குட்டி போடுவானா ஆடு குட்டி போடுவான்? कौन बचा देगा? ये भेड़ बकरी सब बचा देगा या पास्टरे बचा देता रहे? आपके चर्च में कौन बचा दे रहा है? कौन सेवक है कर रहा है? आप कर रहे हैं या विश्वासी कर रहा है? पास्टरे कर रहे हैं ना. तो पास्टर ठीक नहीं है, विश्वासी ठीक नहीं है. बोलिए आपके चर्च में कौन बच्चा दे रहा है, कौन विश्वासी को ला रहा है? तो भेड़े ना बचा देता है तो आप ना भी आपके चर्च में काम कर रहे हैं, तो गलती किसका है? நம்முடைய ஆடுகளை நாம் மேய்க்கிறோம், ஆடுகளை நாம் பராமரிக்கிறோம், ஆடுகளை நாம் பாதுகாக்கிறோம். भेड़ों को आप रक्षा करते हैं, भेड़ों को आप देखरेख करते हैं, भेड़ों को आप खिलाते हैं, भेड़ों को आप अच्छा से पिलाएंगे. ஆனால் நம்முடைய ஆடுகள் மலட்டு ஆடுகளா இருக்க கூடாது. यार इसका मतलब हमारा भेड़ बकरियां भांज नहीं होना चाहिए. நம்முடைய ஆடுகள் குட்டி போட்டால் தான் நம்முடைய மந்தை பெருகும். यारो यदि आपको भेड़शाला बढ़ना है तो भेड़ बकरियां बच्चा देना होगा.
நம்முடைய மந்தை பெருகத்தக்கதாய் நம்முடைய ஆடுகளை குட்டி போடுகிற பருவத்திற்கும் பக்குவத்திற்கும் அந்த பாதைக்கும் நாம் நடத்தி செல்ல வேண்டும். यारो यदि आप सही पास्टर है तो आप अपने विश्वासियों को ऐसा ऐसा शिक्षा देंगे, ऐसा ऐसा ज्ञान देंगे, ऐसा ऐसा कार्य को करेंगे, आपका भेड़ जो है, आपके विश्वासी आगे काम करने लायक बन जाएंगे. நான் தூத்துக்குடி அசெம்பிளி ஆஃப் காட் சர்ச்சில் இருக்கும்போது அந்த சபையினுடைய கணக்கிலே என்னுடைய பெயரிலே 14 சண்டே ஸ்கூல் உண்டு. मैंने तूतुकुड़ी शहर में जब रहता था मेरा नाम को ऊपर 14 संडे स्कूल वहां लिखा जाता है. நான் அந்த சபையினுடைய விசுவாசி. मैं उस चर्च का विश्वासी हूं. பாஸ்டர் சொல்லும்போது என்னுடைய சபையிலே இன்னார் மூலமாய் 14 संडे स्कूल நடக்கிறதுன்னு சொல்லுவார். यारो वो क्या कहते हैं मेरे विश्वासी के द्वारा 14 संडे स्कूल चलाया जा रहा है करके पास्टर कहते थे. உங்களுடைய சபையில் இருக்கிற விசுவாசிகளும் உங்களால் அப்படி கனப்படுத்தப்பட வேண்டும். यारो आपका चर्च के विश्वासी भी आपके लिए ऐसे ऐसे काम करना बोलिए काम करना चाहिए. அப்படி இருக்கும்போது அசெம்பிளி ஆஃப் காட் ஸ்தாபனம் சபையிலே ஞாயிறு ஆராதனை நடத்த விரும்பினது. அதை இந்தியாவிலே முதலாவது தூத்துக்குடியில் இருக்கிற சபையிலே என்னை கொண்டு ஆரம்பித்தார்கள். यारो ये जी चर्च में संडे स्कूल को लोग शुरू करने के लिए सोच रहे थे, लेकिन कहां पर शुरू हुआ मालूम है? जिस सागर में मैं रहता था तूतुकुड़ी सागर में, वो मेरे द्वारा ही उस काम को परमेश्वर ने सबसे पहले शुरू किया. आज पूरा एज चर्च में संडे स्कूल का ऊपर उन लोग जोर देते हैं, लेकिन पहला बीज को किसने दिया? हमारे बाबा ने. இந்த மகத்துவமான ஊழியத்தை நான் செய்ய முதலாவது விரும்பவில்லை. यारो इस सेवकाई को मैंने चाहा ही नहीं. ஆனால் அதை செய்ய ஆரம்பித்த பொழுது அதை புறக்கணிக்க விரும்பவில்லை. लेकिन उसको जब करना मैंने शुरू किया उसको छोड़ना भी मैं नहीं चाहा. அதற்காக செலவிட வேண்டும் என்று சொல்லி நினைத்த பொழுது நான் சோர்ந்து போகவே இல்லை. उसके लिए खर्चा करना है करके जब मैंने सोचा उसके हाथ धोने के लिए मैंने तैयार नहीं हुआ. அதை செய்யும்படியாய் அழைத்தவர், அதை செய்யும்படியாய் நடத்தினவர், அதை செய்வதற்கான சகல காரியங்களையும் இன்றைக்கு வரைக்கும் செய்கிறார். यारो जिस परमेश्वर ने उस सेवकाई के लिए मुझे भेजा, जिस सेवकाई के लिए परमेश्वर मुझे ठहराया, वो परमेश्वर मुझे उस सारा खर्च को उठाने के लिए भी मुझे ताकत को दिया है. हालेलुया 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 हालेलुया. இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா பணங்களுடைய கணக்கை காட்டிலும் நம்மோடு இருக்கிறவர் பெரியவர். यारो इस दुनिया में कितना भी हिसाब किताब होता है उससे बढ़कर हमारा परमेश्वर सबसे बड़ा है. हालेलुया हालेलुया. दोनों हाथ उठा के बोले हालेलुया. आपका परमेश्वर बड़ा है छोटा है? बड़ा है. அதனால் நாம் சுவிசேஷத்தை அறிவிப்பது நம்மேல் விடுத்த கடமை. அதை நாம் அறிவிக்க வேண்டும். நம்முடைய சபையாரை சுவிசேஷம் அறிவிக்கிறவர்களாய் நாம் உருவாக்குவோம். தேவன் அவர்களை கொண்டு நம்முடைய மந்தையை பெருக பண்ணுவார். यारो हमारे चर्च को हम ऐसे ऐसे बनाएंगे ताकि हमारे भेड़ों के द्वारा हमारा चर्च जो भेड़शाला है वो दिन प्रतिदिन क्या होते जाए? बढ़ते जाए. हालेलुया हालेलुया. நான்காவதாக ஒன்று எபேசியர் 4:32. எபேசியர் 4:32. इफिसियों 4:32. इफिसियों 4:32. வேதம் சொல்லுகிறது, கிறிஸ்து உங்களுக்கு மன்னித்தது போல நீங்களும் ஒருவருக்கொருவர் மன்னியுங்கள். यारो परमेश्वर जैसे आपको क्षमा किए वैसे ही आप भी एक दूसरे के लिए क्षमा करें. நம்மிடத்திலே தேவன் எதிர்பார்க்கிற ஒன்று நாம் மன்னிக்கிறவர்களாய் காணப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி. यारो परमेश्वर आपको चाहता है आप क्षमा करने वाले एक व्यक्ति बन जाए. நம்முடைய தேவன் மன்னிக்கிறவர். நம்முடைய தேவன் மன்னிக்கிறவர். அதனால் அவரில் இருந்த சிந்தையை, கிறிஸ்து இயேசுவில் இருந்த சிந்தையை உங்களில் இருக்க கடவுது. நாமும் மன்னிக்கிறவர்களாய் காணப்பட வேண்டும். यारो हमारा परमेश्वर क्षमा करने वाला है. उनके अंदर रहने वाले मन भावना क्षमा करने की स्वभाव मुझ में और आप में रहना है. மன்னிப்பது என்பது தெய்வீக சுபாவம். यारो क्षमा करना मतलब वो ईश्वरीय स्वभाव है. நமக்கு மன்னிக்கிற பழக்கம் இல்லாம இருக்கும்போது ஒரு குடும்பத்திற்கு நம்ம ஆலோசனை கொடுக்க போகிறோம். குடும்பத்திற்குள்ளே சகோதர சகோதரிகளுக்குள்ளே பிரச்சனை.
அவர்களை எப்படி நாம் மன்னிப்புக்குள் நடத்த முடியும்? यारो आप एक परिवार में जा रहे हो, वहां पर आप क्षमा नहीं कर पा रहे भाई बहनों को, तो आप कैसे उनको आगे की ओर ले जाएंगे? ஒரு சபையிலே ஆராதனை நடத்துவதற்கு பயங்கர எதிர்ப்பு. காரணம், பக்கத்து இடத்திலே உள்ளவர் காம்பவுண்ட் போட வரும்போது அவர் செய்த சில செயல்களை இந்த போதகரால் மன்னிக்க முடியவில்லை. அதனால் தொடர்ந்து அந்த இடத்திலே அவரால் ஊழியம் செய்ய முடியாமல் போய்விட்டது. यारो चर्च के बगल में एक आदमी है, वो और उन पास्टर के बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया, क्योंकि कुछ बातों में वो आदमी जो है, जो पड़ोसी था, वो बहुत अड़चन लगाता था। लेकिन ये पास्टर उन सारे कामों को भूल नहीं पाए। तो भूल नहीं पाए तो इसका मतलब क्या है? क्षमा नहीं कर पाए। इसी के चलते आगे क्या होना पड़ा? उनको उस जगह को खाली करके दूसरा क्षेत्र में जाना पड़ा। இன்றைக்கு அந்த சபை கூட்டப்பட்டிருக்கிறது. அந்த கிராமத்தில் உள்ளவர்கள் பார்க்கிறவர்கள் சொல்லுகிறார்கள், போதகருக்கும் பக்கத்து இடத்துக்காருக்கும் பிரச்சனை, அதனால் சபை நடக்கவில்லை. यार आज भी वो कलीसिया बंद पड़ा हुआ है। लोग क्या कहते हैं मालूम है? वो पास्टर और बगल वाला के बीच में लड़ाई झगड़ा था, इसी के चलते पास्टर चले गए दूसरा जगह करके। போதகரை பார்த்து சொல்லி, ஐயா அந்த மக்கள் பேசினதை அவர்களோடு கூட போய் பேசுங்க, நீங்கள் பேசின எல்லாவற்றையும் மன்னித்து விடுகிறோம், நாங்கள் பேசினதை நீங்கள் மன்னித்து விடுங்கள் என்று சொல்லி பேசுங்கள் என்று சொன்னால் அது முடியாது என்று சொல்லுகிறார். और हम लोग पास्टर से बैठ करके बोल रहे थे, अरे भाई जाके बोल दो यार, हम लोग जो भी कहे हैं उसको क्षमा चाहते हैं, आप जो भी किए हैं उसको भी हम लोग क्षमा करते हैं, हम लोग दोनों एक हो जाएंगे करके वे कई बार अपने आप को झुकने के लिए हम लोग ने सुझाव दिए हैं। लेकिन वो पास्टर बोल रहे नहीं, हम ये सब नहीं करेंगे, हमको क्यों क्षमा करना है, हम नहीं करेंगे, ऐसे करके वो जिद्दी में आ गए। அந்த சுபாவம் எதனால் உண்டானதுன்னா, முதலாவது குடும்பத்திற்குள் மன்னிக்கிற பழக்கம் இல்லை. यारो ये स्वभाव कहां से आता है? मैं घर में एक दूसरे को क्षमा करने का स्वभाव नहीं है, तो बाहर भी ऐसे ही रहेंगे। ஆண்டவருடைய ஊழியத்தை செய்ய வந்திருக்கிற நாம் எல்லாவற்றிலும் முதலாவது நம்முடைய குடும்பத்தில் உள்ளவர்களையும் முதலாவது மன்னிக்க நாம் பழகிக் கொள்ள வேண்டும். यारो सेवकाई में आए हुए आप अपने बाल बच्चों को, अपने परिवार को क्षमा करने वाले, कभी बदला ना लेने वाला व्यक्ति के रूप में होना है। 1976 ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் 4ஆம் தேதி என்னுடைய தகப்பனார் மரித்து போனார். 1976 में दिसंबर महीना में मेरा बाप मर गए। என்னுடைய தகப்பனாருடைய சகோதரர் எனக்கு வர வேண்டிய எல்லா சொத்தையும் எடுத்துக்கொண்டார். मेरे लिए जो हिस्सा आना था, मेरा पापा का भाई जो है उसको हड़प लिए। 33 வருடம் அவர் உயிரோடு கூட வாழ்ந்தார். ஒரு அடி இடம் கூட அந்த ஊர்ல வாங்க முடியவில்லை. ஆனால் இந்த சொத்தை எல்லாத்தையும் விற்று சாப்பிட்டு விட்டார். எனக்கு தர வேண்டிய சொத்தையும் சேர்த்து வித்துட்டாரு. ஆனா அவரால் ஒன்றும் சம்பாதிக்க முடியல. 33 साल मेरा पापा मरने के बाद वो जिंदा रहे, लेकिन उन्होंने उस गांव में एक पिता जमीन को भी खरीद नहीं पाए, लेकिन जो भी जमीन था उसको बेच के खा के सब खत्म कर दिया। அவருடைய பையன் படித்து ஆடிட்டிங் செய்கிற அளவுக்கு, இன்கம் டாக்ஸ் கட்டுற அளவுக்கு அவர் நன்றாக பொருளாதாரத்தில் வளர்ந்தார். ஆனால் அவராலும் ஒன்றும் வாங்க முடியவில்லை. उनका बेटा जो है आईटी इनकम टैक्स ऑफिस में काम करता था, वो बहुत पढ़ा लिखा आदमी था, बहुत बड़ा व्यक्ति बन गया, लेकिन आज भी उनका बेटा इतना बड़ा आदमी बन गया, लेकिन एक पिता जमीन को भी खरीदने में सक्षम नहीं रहा। ஒரு நாள் நானும் என்னுடைய சித்தப்பா பையனும் ஒரு வாகனத்திலே வரும்போது அவனிடத்திலே சொன்னேன், இதுதான் நம்முடைய பூர்வீக வீடு என்று சொல்லி. அவன் சொன்னான், 1,80,00,000 ரூபாய், 1,60,00,000 ரூபாய் என்று சொல்லி பெருமூச்சு விட்டான். So मैं और मेरा चाचा का बेटा दोनों गाड़ी में सवार होकर आ रहे थे। हम लोग अपना पुराना मकान को देख के कह रहे थे, अरे यही मकान हम ही लोग का है, इसका दाम है 1 करोड़ और 60 लाख रुपया करके वो हम लोग कहे कि लंबा सांस लेते थे। அந்த இடத்தை அவர்கள் தகப்பனார் அபகரித்துக் கொண்டதும் அதை அவர்கள் அனுபவிக்க முடியாமல் போனதும் அவனுக்கு தெரியாது. ஏனென்று சொன்னால் என்னை காட்டிலும் அவன் 20 வயதுக்கு இளையவன். So वो बेटा वो ये सब नहीं जानता था, क्योंकि उन्होंने हमारे चाचा उस जमीन को हड़प लिए हैं, उन्होंने खरीद नहीं पाया, ये है वो है, ये सारी कहानी को नहीं जानता था, क्योंकि वो मुझसे 20 साल छोटे थे। அவன் சொன்ன 1,60,00,000 ரூபாய் என்று சொல்லி பெருமூச்சு விட்டது என்னை திகைக்க வைத்தது. यार उन्होंने 1 करोड़ 60 लाख बोलने के बाद जब लंबा सांस लेकर उन्होंने छोड़ा, मुझे एक क्षण के लिए सोचने के लिए मुझे उभारा।
நான் வீட்டிலே போய் அழுது செபித்தேன், ஆண்டவரே என்னுடைய சித்தப்பா எனக்கு செய்த துரோகத்தை நான் மன்னிக்கிறேன், என் சித்தப்பாவுடைய பையனை நீ ஆசீர்வதியும் என்று சொல்லி செபிக்க So ஆரம்பித்தேன். मैंने अपना घर पे जाके प्रार्थना करने लगे, गिड़गिड़ा के करने लगे, हे प्रभु मेरे चाचा जो भी मेरे विरोध में किए हैं उसको मैं क्षमा करता हूँ, उनके बेटा को तूने अनुग्रह कर करके मैंने गिड़गिड़ाने लगा. 3 மாதத்திலே 25 லட்சம் ரூபாய்க்கு அவன் சொத்து வாங்கினான். यारो 3 महीना के अंदर 25 लाख रुपया का एक संपत्ति को उन्होंने इकट्ठा किया. இன்னைக்கு 10 வருடமாக வருடம் 10 லட்சம் ரூபாய்க்கு அவன் சொத்து வாங்குகிறான். और अभी हर साल 10 लाख रुपया का उन्होंने धन और दौलत इकट्ठा करता है. அவருக்கு தகப்பனார் செய்த தவறையோ நான் அவனுக்காக மன்னித்து செபித்ததோ இன்றைக்கு வரைக்கும் அவனுக்கு தெரியாது. यारो उनका पापा जो गलती किए वो मैंने जो उनके लिए क्षमा करके प्रार्थना की वो उनको उस लड़का का पता ही नहीं है. ஏன் சொல்கிறேன் சொன்னா ரட்சிக்கப்பட்ட நமக்கு மன்னித்து ஜெபிக்க தெரியும். यारो उद्धार पाया हुआ व्यक्ति हमें क्षमा कर प्रार्थना करने के लिए आता है. அதை நாம் விளம்பரப்படுத்த வேண்டாம். நாமும் தேவனும் அவருடைய சமூகத்திலே போய் தேவனோடு கூட பேசி ஆண்டவரே அவர்களுக்கு மன்னியும் என்று சொல்கிற பொழுது ஆண்டவர் மன்னிக்கிறவராய் இருக்கிறார். उसके लिए बड़ा बड़ा विज्ञापन देने की जरूरत नहीं है, परंतु मैं और परमेश्वर के लिए जो कुछ करते हैं वो ऊपर वाला उसके हिसाब में रखता है. அப்போ மன்னிக்கிற சுபாவம் தெய்வீக சுபாவம். அதை தேவனோடு கூட போய் தேவ சமூகத்திலே நாம் செய்கிற பொழுது தேவன் அதற்கு பதில் தருகிறவராய் இருக்கிறார். यारो जब आप क्षमा करने का गुण रहेगा वो ईश्वरीय स्वभाव है, उसके लिए परमेश्वर आपको प्रतिफल देंगे. அதே போல ஊழிய பாதையில अनेक அவமானங்களை அடைந்திருக்கிறோம். 2010வது ஆண்டிலே இயேசு மட்டும்தான் தெய்வம் என்று சொன்னதற்காக ஒரு 5 குடும்பத்தினர் சேர்ந்து என் மனைவியை செருப்பால் அடித்தார்கள். और एक बार मैंने सेवकाई में भी हम लोग बहुत दुख उठाए. यीशु ही सच्चा परमेश्वर कहने के चलते 5 परिवार मिलकर मेरा पत्नी को चप्पल निकालकर उनको मारने लगे. அத்தனை பேரையும் மன்னித்திருக்கிறோம், அவர்களோடு கூட நல் உறவு வைத்திருக்கிறோம். उन सबों को जिन्होंने चप्पल उठा के मारा उन सबों को हम लोग न केवल क्षमा किया है, उनके साथ भी आज हमारा उठ बैठ अच्छा होता है. நாம் மன்னிக்கிறவர்களாய் இருக்கிற பொழுது நம்முடைய சபையாரும் அவர்களுடைய குடும்பத்தினரை சுற்றிலும் இருக்கிறவர்களை மன்னிக்கிறவர்களாய் காணப்படுவார்கள். यारो यदि आप और हम क्षमा करने वाला रहेंगे हमारा कलीसिया भी क्षमा करने वाला एक शानदार कलीसिया होगा. हालेलुया हालेलुया. அதனால் மத்தேயு 6வது அதிகாரத்தில் இயேசு சொல்கிறார், நீங்கள் எவைகளை மன்னிக்கிறீர்களோ அவைகள் உங்களுக்கும் मन्निக்கப்படும். इसलिए मत्ती में हम लोग पढ़ते हैं 6वां अध्याय में जैसे हम क्षमा करते हैं वैसे हमें भी क्षमा किया जाएगा. அதனால் நாம் எல்லாவற்றிலும் மன்னிக்க நாம் கற்றுக்கொள்வோம், மன்னிப்போம், நம்முடைய சபையாருக்கு மன்னிக்க கற்றுக் கொடுப்போம். तो इसलिए हम क्षमा करेंगे और हमारा चर्च हमसे क्षमा करने का स्वभाव को सीख लेगा. கடைசியாக எபிரேயர் 13வது அதிகாரம் 16வது வசனத்தை வாசிப்போம். इब्रानियों 13वां अध्याय उसका 16वां वचन. इब्रानियों 13 का 16 पढ़ेंगे, सबको निकालेंगे. इब्रानियों 13 का 16वां वचन को. इब्रानियों 13 का 16 13-16 அன்றியும் நன்மை செய்யவும் தான தர்மம் பண்ணவும் மறவாதிருங்கள், இப்படிப்பட்ட பலிகளின் மேல் தேவன் பிரியமாயிருக்கிறார். 13 को 16 को सब कोई पढ़ेंगे, सब कोई पढ़ेंगे 13 को 16 को. நாம் நன்மை செய்கிறவர்களாய் காணப்பட வேண்டும். यारो भलाई करने वाला व्यक्ति बनना है. அப்போஸ்தலர் 10வது அதிகாரத்தில் வாசிக்கிறோம், இயேசு நன்மை செய்கிறவராய் சுற்றி திரிந்தார். प्रेरितों के काम में हम लोग पढ़ते हैं परमेश्वर भलाई करते हुए घूमता फिरता आया. அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் கலாத்தியருக்கு எழுதும்போது எழுதுகிறார், நன்மை செய்கிறதிலே சோர்ந்து போகாதிருப்போமாக. गलातियों के कलीसिया के लिए पौलुस कहता है भलाई करने में कभी हिम्मत मत हारना. இதனுடைய பொருள் என்ன? நன்மை செய்கிற பொழுது நமக்கு अनेक நேரங்களிலே சோர்வு உண்டாகும். यारों भलाई करने के समय कई बार आप निराश हो जाएंगे. நாம் நம்மிடத்திலிருந்து நன்மையை பெற்றுக்கொள்கிற ஜனங்கள் நமக்கு நன்றிக்குரியவர்களாய் காணப்பட மாட்டார்கள். यारों जो व्यक्ति भलाई को प्राप्त करते हैं वे कभी आपके लिए आभारी नहीं रहेंगे. உதாரணம், முழு உலகத்திற்காக ரத்தம் சிந்தின இயேசுவின் மேல் எத்தனை பேர் நன்றி உள்ளவர்களாய் இருக்கிறார்கள்? यारों आप याद रखिएगा सारे मानव जाति के लिए यीशु ने लहू बहाया, कितना लोग उसके लिए धन्यवादी थे? बहुत कम लोग. आप और हम धन्यवादी, तो दुनिया कहाँ है धन्यवादित नहीं है.
அழிவில்லாத நித்திய ஜீவனுக்காக நன்மை செய்ததையே ஜனங்கள் நன்றியுள்ளவர்களாய் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்று சொன்னார். உலகத்திலே அநித்தியமான நன்மை செய்கிற நம்மை அவர்கள் நன்றியுடையவர்களாய் நமக்கு இருப்பார்கள் என்பது என்னல்ல, பொருள் அல்ல. यारो अनंत काल के जीवन के लिए परमेश्वर ने एक अद्भुत कार्य को किया, उसके लिए कई लोग धन्यवादित नहीं है. आप तो साधारण चीज को करते हैं, उसके लिए आप इंतजार करना गलत है. அப்படி இருக்க நாம் நன்மை செய்ய வேண்டும், ஆனால் சோர்ந்து போக கூடாது. हम भलाई करना है परंतु हताश नहीं होना है. நாம் நன்மை செய்கிற ஒவ்வொன்றிலையும் தேவன் பிரதிபலன்களை கட்டளையிடுவார். यारो जब कभी आप भलाई करते हैं परमेश्वर आपके लिए उसके लिए प्रतिफल देते रहेंगे. நாம் ஒருவருக்கு நன்மை செய்கிறதை அவர்கள் நன்றியோடு ஏற்றுக்கொண்டால் அவர்கள் பலருக்கு நன்மை செய்கிறவர்களாய் மாறுவார்கள். यारो आप जब भलाई करते हैं उसको वे समझ लेंगे, वे बहुतों को भलाई करने वाला भी बन जाएंगे. நான் ஒரு கிராமத்திலே ஊழியம் செய்த பொழுது, இதற்கு முன்பு கிராமத்திலே ஊழியம் செய்த பொழுது கிராம மக்கள் கஷ்டப்படுகிறார்கள். பண்டிகை நாட்களிலே நல்ல அரிசி வாங்கி சாப்பிட வேண்டும் என்று சொல்லி ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்கும் 10 குடும்பத்துக்கு 5 கிலோ அரிசி வாங்கி கொடுத்தேன். यारो त्योहार के समय में अच्छा अच्छा पकवान, अच्छा अच्छा खाना लोग खाना पसंद करते हैं बोल के त्योहार के समय में मैंने 10 घरों के लिए अच्छा अच्छा राशन और सामान लेकर उनके घर पे पहुंचाता हूँ. இதை ஒரு செல்வந்தர், ஒரு சுவிசேஷ குழுவை நடத்துகிற ஒரு செல்வந்தர் என்னிடத்திலே கேட்டார், நீங்கள் கிறிஸ்துமஸுக்கு என்ன செய்கிறீர்கள் என்று சொல்லி நான் இதை அவர்களுக்கு விளக்கி சொன்னேன். सो एक बहुत बड़ा धनवान एक अच्छा सेवक था, उन्होंने हमसे पूछने लगे अरे क्रिसमस के समय में आप क्या करते हैं? तो मैंने बोलने लगा सुनिए ना, ऐसे ऐसे मैं करता हूँ, जो गरीब लोग हैं उनके लिए अच्छा राशन पानी लेकर उनके घर पे पहुंचाता हूँ ताकि त्योहार के समय में अच्छा से वे खान पान कर सके. அவர்கள் குழுவாக 500 குடும்பங்கள், சுற்றிலும் இருக்கிற கிராமங்களிலே கஷ்டப்பட்ட 500 குடும்பங்களுக்கு 10 கிலோ அரிசி வாங்கி கொடுக்க ஆரம்பித்தார்கள். मैंने 5 किलो राशन पानी दिया है, उन लोग ने 500 घर के लिए 10 किलो राशन पानी की व्यवस्था करके सबको घर घर पहुंचाया. இதனுடைய பிரதிபலன் கொரோனா நாட்களிலே தமிழ்நாடு முழுவதும் ஆங்காங்கே கஷ்டப்படுகிற குடும்பங்களுக்கு குழுக்கள் வாங்கி கொண்டு அரிசி கொடுக்க ஆரம்பித்தார்கள். यार इसका परिणाम क्या है? कोरोना के समय में इस प्रकार के झुंड के लोग जो है अलग अलग जगहों पे राशन पानी की व्यवस्था करके देने लगे. இப்பொழுது ஒவ்வொரு வருஷமும் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். अभी हर साल इस प्रकार के भले काम को वे करते हैं. நாங்கள் ஒவ்வொரு வருஷமும் எங்கள் கிராமத்தில் உள்ள 200 குடும்பங்களுக்கு கிறிஸ்துமஸ் அன்று ஒரு நல்ல நற்செய்தி அறிவித்து 5 किलो अरिसी கொடுக்கிறோம். यारो आज भी मेरे बस्ती में रहने वाले लोगों के लिए सुसमाचार सुना के उनके लिए 5 किलो एक अच्छा चावल को दान में देते हैं. எங்கள் கிராமத்துக்குள்ளே வெள்ளை சட்டை போட்டு வந்தால் அடிப்பான், குழுவாய் சேர்ந்து அடிப்பான். हमारा गांव में क्या होता है, ये सफेद कपड़ा पहनकर कोई आएगा तो उसको पीटा होता है. क्योंकि सफेद कपड़ा कौन पहनता है? ये पास्टरे लोग पहनता बोलकर बड़ी मार मार करता. இப்பொழுது யாரையும் அடிக்கிறதில்லை. अभी किसी को नहीं मारते हैं. ஒரு நன்மையை பெற்றுக் கொள்ளுகிறவன் நம் எதிரியா இருந்தாலும் நம்மை சிநேகிதனாய் மாறுகிறார். यारो भलाई को पाने वाला दुश्मन भी रहेगा हमारा पक्ष में बदल जाता है. நாம் செய்கிற ஒவ்வொரு நன்மையான காரியங்களுக்கும் தேவன் நமக்கு பிரதிபலனை வைத்திருக்கிறார். यारो हम जो भी भलाई करते हैं उन सारे भलाई के लिए परमेश्वर प्रतिफल को रख छोड़ा है. உலகத்தின் மனிதர்கள் நன்மை செய்தால் புண்ணியம் என்று சொல்கிறார்கள். यारो दुनिया के लोग कहते हैं भलाई करने से आपके लिए पुण्य मिलेगा. நாம் செய்கிற நன்மையோ நமக்கல்ல அவர்களுக்கு புண்ணியமாகிய இயேசுவை காண்பிக்கிறோம். यारो हम भलाई करने के द्वारा उस बड़े परमेश्वर से पहचान दिलाते हैं. மற்றவர்கள் செய்கிற நன்மை அவர்களுக்கு புண்ணியம், நாம் செய்கிற நன்மையோ நம்மிடத்திலே நன்மையை பெற்றுக் கொள்ளுகிறவர்களுக்கு புண்ணியம். यारो और लोग जो भलाई करते हैं उन लोग सोचते हैं हम भलाई करेंगे तो मेरे लिए आशीष मिलेगा, लेकिन आप भलाई करेंगे तो उस महान परमेश्वर को लोग पहचानेगा. हालेलुया. हालेलुया. இயேசு கிறிஸ்துவுடைய ஊழியத்திலே அவருக்கு தங்கள் ஆஸ்திகளால் ஊழியம் செய்த சகோதரிமார் இருந்தார்கள். यारो परमेश्वर यीशु मसीह के सेवकाई में अपने धन और दौलतों से द्वारा कई बाहर लोग सेवा टहल किए थे. இயேசு கிறிஸ்துவுடைய ஊழியத்திற்கு பணம் தேவையா? यीशु मसीह के सेवकाई के लिए पैसा की जरूरत है क्या? हाँ जरूरत है. தண்ணீரை திராட்சை ரசமாய் மாற்றி கொடுத்து விட்டார். परंतु वो परमेश्वर पानी को ताकरस में बदल के सबको दे दिया. ஒன்றும் செலவில்லை.
पैसा का जरूरत नहीं। 5 அப்பத்தையும் 2 மீனையும் 5000 பேருக்கு கொடுத்து மீதி எடுத்து விட்டார். 5 रोटी 2 मछली को 5000 क्रूसों को खिला के बचत भी ले लिए। மரித்து 4 நாள் ஆனவனும் வெளியே வாங்கிட்டாரு. मरा हुआ लाजर को 4 दिन के बाद उन्होंने बाहर किया। 18 வருஷமா கூனியில இருந்தவன் நிமிர்ந்து போன்னு சொல்லிட்டாரு. 18 साल जो लेटा हुआ आदमी को उन्होंने जला दिया। 12 வருஷம் பெரும்பாடு உள்ளவன் தொட்டு சுகத்தை இலவசமாய் பெற்றுட்டு போயிட்டான். 12 साल लघुबा आने वाली भगत को परमेश्वर ने छूने के द्वारा चंगाई पाई। இப்ப இயேசுவுக்கு எதற்கு பணம்? यीशु के लिए क्यों पैसा की जरूरत है? யோவான் 13வது அதிகாரம் यूहन्ना 13वां अध्याय 29வது வசனம் வாசிங்க. इसका 29वां वचन कहती है, यूहन्ना 13 का 29, यूहन्ना 13 का 29, 13 29 13 का 29 कोई पढ़ेंगे? यहूदा के पास थैली रखी थी, हाँ। इसलिए किसी ने समझा कि यीशु उससे कह रहा है कि जो कुछ हमें कर्म के लिए चाहिए वह मोल ले, या यह कि कंगालों को कुछ दे। अतः वह टुकड़ा लेकर तुरंत बाहर गया। அவன் போய் பண்டிகைக்கு தேவையானதை கொள்ளும்படிக்காவது தரித்திரருக்கு ஏதாகிலும் கொடுக்கும்படிக்காவது. कंगालों को कुछ देने के लिए लिखा हुआ है कि नहीं? हाँ। அப்ப இயேசு தரித்திரருக்கு கொடுப்பதற்கு பணத்தை பயன்படுத்தினார். इसका मतलब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पैसा को किसके लिए खर्च किया? कंगालों के लिए। किसके लिए पैसा खर्चा किया? कंगालों के लिए। அப்ப இயேசு தரித்திரருக்கு உதவி செய்தார்னு சொன்னா நாமும் செய்ய வேண்டுமா செய்ய வேண்டாமா? यीशु मसीह ने गरीब और कंगालों को मदद किया, तो आप और हम गरीब और कंगालों को मदद करना है या नहीं करना? ஆம், நாமும் செய்கிற பொழுது தரித்திரருக்கு செய்கிற பொழுது ஆண்டவர் சொல்கிறார், ஏழைக்கு இறங்குகிறவன் கர்த்தருக்கு கடன் கொடுக்கிறார். तो इसलिए हम बोलते हैं जो गरीब है उनके ऊपर आप दया करेंगे, इसका मतलब आप परमेश्वर को आप उधार देते அவர் हैं। கொடுத்ததை அவர் திரும்ப கொடுப்பார். जो आप देते हैं उसको वो वापस करता। அதனால் நாம் நன்மை செய்ய வேண்டும், நம்முடைய சபையாரையும் நன்மை செய்ய பழக்குவிக்க यार வேண்டும். आप भलाई करना है, आपके कलीसिया को भी भलाई करने वाला कलीसिया के रूप में बनाना है। ஆம், நாம் அனுபவிக்கிற ஒவ்வொன்றையும் நம்முடைய சபையார் அனுபவிக்க வேண்டும். यार आप जो भी अनुभव करते हैं उन सारी बातों को वो भी अनुभव करना है। நாம் தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்கு தகுதியுடையவர்களாய் காணப்பட வேண்டும். यारो आप परमेश्वर का राज्य के लिए हकदार होना है। நம்முடைய சபையார் அனைவரையும் தகுதியுடையவர்களாய் மாற்ற வேண்டும். हमारा चर्च में जितना लोग है सबको इस स्वर्ग का हकदार बनाना है। நம்முடைய சபையார் அநேகரை தகுதியுடையவர்களாய் பண்ணுவதற்கு அவர்களை நாம் உற்சாகப்படுத்த வேண்டும். यार हमारे चर्च वाले बहुतों को परमेश्वर का राज्य का हकदार बनाने वाला बनना चाहिए। இதுவே ஆண்டவருடைய பெரிய எதிர்பார்ப்பு நம்மில் இருக்கிறது. यारो यही है परमेश्वर का एक बहुत बड़ा चाहत है। அந்த எதிர்பார்ப்பை நாம் நிறைவேற்றுவோம். उस चाहत को हम पूरा करें। யோவான் சொன்னது போல ஆமென் கர்த்தராகிய இயேசுவே வாரும் என்று சொல்ல ஆயத்தமாவோம். यारो ये जैसे यूहन्ना कहता हाँ प्रभु आप शीघ्र आए करके इस बातों को कहने वाला मैं और आप बनने पाए। ஆண்டவர் நம்ம ஒவ்வொருவரையும் அப்படியே வழி நடத்துவாராக. परमेश्वर हम सबों को आशीष देने पाए। हालेलुया हालेलुया। सो प्यारा मैं आपसे कहूंगा एक है आप सुसमाचार के लिए आप एक गवाही है कि नहीं? सुसमाचार आपके जीवन से प्रकट होना है और दूसरा हमारे जीवन से गवाही होना है और तीसरा आप सबों के लिए सेवा टहल करना, बच्चे बड़े सबों के लिए। और मैं कहूँगा आप भलाई करना है और आपके अंदर क्षमा करने का गुण होना चाहिए। क्या नो आज आप कैसे हैं? क्या आपके अंदर इस प्रकार एक सुसमाचार के प्रति एक गंभीर विचारधारा पाई जाती है? यदि सुसमाचार को लेकर आपके अंदर गंभीरता नहीं रहेगा, मैं कहूँगा हमारा कलीसिया जैसे कि तैसे रह जाए। आज ये जी चर्च बढ़ता, आपको मालूम है ये जी चर्च में सुसमाचार को लेकर हर दिन प्रवचन देता। आज हमारा चर्च बढ़ नहीं रहा, क्या है? हम ही सुसमाचार सुनाता है, हम ही प्रेयर करता है, हम ही करते हैं। मैं कहूँगा यदि हमारा चर्च बढ़ना है, आप पहले अपना विश्वासी को भरोसा कीजिए।
विश्वासी कौन है? विश्वासी कौन है भैया? विश्वासी कौन है आपके? नहीं मालूम है? विश्वासी कौन है आपके लिए? रसिया में जो आते हैं, कलिसिया में आते हैं और नहीं आते वो भी है। विश्वासी आपके लिए कौन है? विश्वासी के लिए आप क्या लगते हैं? बस साहब सर्वह पप्पा लगते हैं। याद रखिए, यही आप लोग गलती करते हैं। जिस दिन आप अपने को अपना विश्वासी को बेटा बेटी समझेंगे, आप उसको ऊपर क्या करेंगे? विश्वास करेंगे। आप अपने बेटा के ऊपर विश्वास करते हैं कि नहीं? विश्वासी के ऊपर नहीं करते। क्यों? आप उसको बेटा नहीं समझते हैं। अपना बेटा के लिए आप आंसू बहाकर प्रार्थना करेंगे। विश्वासी के लिए क्यों नहीं आंसू बहाते हैं? आप उसको अपना नहीं समझ रहे हैं, पराई। भैया अपना समझकर आप प्रार्थना करेंगे ना, आपके आंखों में आंसू आएगा। यार मैं आपसे कहूंगा, आपका हाथ में जो परमेश्वर ने अभिषेक को दिया, उसको कोई छीन नहीं सकता जब तक ऊपर वाला नहीं निकाले। तो आप क्यों घबराना है? कई बार हम लोग डरते हैं, अरे आजकल विश्वासी लोग बहुत तेज है, हम लोग ये कर देगा वो कर देगा। आपका अभिषेक इतना कमजोर हो गया क्या है? भैया जिस दिन आप समझेंगे मेरा अभिषेक कमजोर है, आपको पकड़ना पड़ता है। जिस समय आपका अभिषेक बरकरार है, किसी के डरने का जरूरत नहीं है। आपका अभिषेक ने लोगों को ले आए, आपका वचन जो है लोगों को ले आएगा। तो भैया बच्चा बच्चा ही है। बच्चा आपके सामने नहीं कर सकता मैं बाप बन गया। बाप बन सकता है, लेकिन आपके लिए वो बच्चा ही। हालेलुया। इसलिए मैं आपसे बड़ी दीन और नम्रता से कहूंगा, प्यारा आज अपने बेटा और बेटी को जैसे विश्वास करते हैं, विश्वासी को विश्वास कीजिए। जिस दिन विश्वासी को विश्वास करके उसके हाथों में जिम्मेवारी दे देंगे, मैं कहूंगा 10 बार उल्टा करेगा, 15 बार आपका नाम बदनाम करेगा, फिर भी बेटा को क्या नहीं करते हैं? विश्वासी को बोल देंगे आप हट जाएंगे, आपको नहीं करने आता, लेकिन बेटा को हटा देंगे। हाँ? बेटा को क्या बोलते हैं? गलती होता है बाबू, अच्छा वो कर लेगा। उनको हिम्मत दिलाते हैं। विश्वासी को ठंडा कर देते हैं, बेटा को गर्म कर देते हैं। हेलो पास्टर, क्यों हमारा चर्च नहीं बढ़ पा रहा है? हम बेटा को यकीन करते हैं, विश्वासी के ऊपर यकीन नहीं करते। मैं आप लोगों से बड़ी दीन और नम्रता से कहूंगा, विश्वास कीजिएगा। आपका अभिषेक बड़ा है, आपका अभिषेक के विरोध में आपका बेटा कुछ नहीं कर सकता। इतना आप विश्वास कीजिए। मैं कहूंगा आपका चर्च बढ़ जाएगा, बन जाएगा। आप कई शाखाओं को निर्माण कीजिए, सुसमाचार को शुरू कीजिए, सेवकाई की कीजिए। जहां जहां सेवकाई नहीं हो पा रहा शुरू कीजिएगा। मैं आपसे कहूंगा जहां जहां आप जाएंगे वहां पर आपका परमेश्वर आपके साथ रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने एक बहुत बड़ा सेवकाई को किया। आज आप किस प्रकार के इतिहास रचने के लिए आप तैयार हैं? क्या सचमुच में आप अपने आप को समर्पण करेंगे? क्या परमेश्वर एक ही है? परमेश्वर दो नहीं, परमेश्वर एक ही है, दो है? एक है ना? तो उनके द्वारा कर सकता है, तो हमारे द्वारा क्यों नहीं? उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है, तो हमारा आवश्यकताओं को क्यों नहीं? हमको क्यों इन्हें उन्हें टटोलते रहना? कारण यही है, लोग बैठते हैं उसको उपस्थिति में, हम भागते रहते हैं, उन लोग बैठते रहते। यही अंदर है। आप भी बैठ जाएंगे, आप भी उड़ने वाला बन जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सबके खड़े हो जाएंगे, हम परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पण करेंगे। तू सच्चा जिंदा खुदा है, तुझ पर ही भरोसा मेरा। दोनों हाथों में उठा करके, तू सच्चा जिंदा खुदा है, तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाओ इनाम,
कैसा स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। मैं विनती करूंगा हमारे बीच में भाई सुनील जी आएंगे, हमारा प्रेसिडेंट महोदय आएंगे, हम सबों को परमेश्वर का हाथों में अर्पण करते हुए मैं विनती करूंगा हमारे प्रेसिडेंट साहब आएंगे, वे सबों के लिए प्रार्थना करेंगे। एक एक दिन के सेवक है, आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा रूप लेना है, एक नया कार्य लोकरदगा से अलग अलग कहानियां, अलग अलग गवाहियां होना गए, उस प्रकार के कार्य को परमेश्वर ने अंजाम देने के लिए हमारा प्रिय भैया प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रेमी परमेश्वर, हम तेरे हुजूर में आते हैं परमेश्वर, आज की सभा के लिए, आज की इस सुंदर अवसर और दिन हमारे ज़िंदगी में जोड़ने के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। आप यहाँ पर उपस्थित हर एक सेवक और सेविकाओं को प्रभु ले आया है और आपके वचन के द्वारा प्रभु उनके जीवन में बातचीत किया है। आज पवित्र आत्मा धन्यवाद देते हैं कि उनके जीवन को प्रभु अपने सामर्थ्य और अभिषेक से भरा, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। होने दे प्रभु हम सब इस लोहरदगा के सेवक, लोहरदगा के लिए प्रभु हम समर्पण करते हैं। हम सब प्रभु प्रार्थना करने वाले होने पाए, हमारे लोहरदगा का ये तस्वीर बदलने पाए प्रभु, लोहरदगा यीशु को महिमा देने पाए, ये झारखंड यीशु को महिमा देने पाए, पूरे देश के अंदर भी पिता बेदारे का तूफान आने दीजिए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। आज से एक नए बदलाव को आने दीजिए प्रभु। हम प्रत्येक परिवार में तेरे दास लोग, कलीसिया में तेरे दास लोग प्रभु, हम ऐसे साधारण नहीं परंतु परमेश्वर बड़े अभिषेक पाकर और प्रभु प्रार्थना करने वाले होने पाए, और प्रभु प्रार्थना की आत्मा को ले लिए परमेश्वर। धन्यवाद करता है एक सेवक का जीवन में, परिवार में, उनके कलीसिया, उनके सेवकाई में बदलाव आने पाए। हम धन्यवाद करते हैं आपके सेवकगण परमेश्वर पिता, आकर हमारे जीवन में समय आपके उस सामर्थ भरे वचन को दिए हैं। हम धन्यवाद देते हैं, अपने दासों को भी अपने हाथ में लीजिए प्रभु जी, अब सब कुछ को तेरे हाथ में सौंपते हैं। आज की सारी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं, आज के सारे आपके कृपा के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। तेरे हाथ में सब कोई को हम समर्पण करते हैं, आपके दासों को भी आप ही के हाथ में समर्पण करते हैं पिता परमेश्वर। अब तक की आपकी भलाई, अब तक की आशीष के लिए और पिता हम धन्यवाद करते हैं। हम सबको संभाला है, हम सबको एक अच्छा स्वास्थ्य का जीवन दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आगे प्रभु हम सबका अगुवाई करें इस लोहरदगा की कलीसिया, एक बार फिर से प्रभु जितने कलीसियाएं पाई जाती है सब कलीसियाओं के अंदर बेदारी आने पाए, बदलाव आने पाए। सेवा करने वाले आपके सेवकों को बड़े आशीष दीजिए, परिवार का आशीष दीजिए, करियर कलीसिया को आशीष दीजिए। सारी आदर महिमा हम आपको देते हैं मेरे परमेश्वर पिता। आपने हमारी इस प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर, प्रार्थना को सुना और पिता हम मांग लेते हैं और सभी बातों के लिए आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से सुने और दया से ज्ञान करें। बैठ जाएं।